Hello champions, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today I will cover all those questions from the GATE 1996 to 2025 related to the assignment problem. As usual, you all knows about me. I will provide you the answers in a 15-second time periods. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. Make sure students every year the gate examinations in the gate examinations two question will be asked. One question is related to the linear programming problem and second is related to the transportation and assignment problem. In the linear programming problem, they may be asked from the optimal solutions, value, BFS, graphical, and so on. For that case, we already discussed the part A and the part B. How do you find that or how you can watch that? You can go to my YouTube channel, watch the playlist LPP solution. And in this playlist, you can see the complete, this is part A, part B. On the other hand, transportation problem is also explained in the 15-second time periods. और आज का लेक्चर क्या है? Assignment problems. After the completion of the today's lecture, I assume that you will get 100% marks in the linear programming problem. And believe me स्टूडेंट्स, अगर आपने ये प्लेलिस्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग के सब लेक्चर देख लिए, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर इन द 15-second टाइम पीरियड्स. फाइन. अगर आप में से कितने लोगों ने ये प्लेलिस्ट देखी है और यू हैव वॉच अबाउट माय पार्ट ए पार्ट बी ट्रांसपोर्टेशन, क्या वाकई आपको 15 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा सॉल्व करने के लिए? कमेंट करिए, मोटिवेट करिए बाकी सब स्टूडेंट्स को भी जो अभी भी कश्मकश में है कि क्या वो वाकई इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें कि ना करें. फाइन. अगर आप और प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, यू कैन वॉच माय अनदर प्लेलिस्ट called as the GATE Mathematics. You can see the other lecture related to the continuity, differentiability, differential equation, all are available free of cost to all of you. Make sure students, I always provide the free education to everyone. Fine. There is no need to pay anything to me or to anyone. Okay. मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, more than 200 plus students already qualified the NET examinations and the GATE examinations. ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को ईमेल करके थैंक्स करा है. फाइन. You will be the next one, but you have to watch the video till the end. Now, if I quickly give you the first 10 minutes, what is the shortcut tricks behind the assignment problems? Okay, then you have to wait for the first 10 minutes. Don't write in the first 10 minutes. Believe me, I will tell you 15-second tricks. मैं कुछ आपको ऐसा बता जाऊंगा इसमें 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा and you will be very surprising and you will definitely will say oof to wow your reaction. फाइन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्या आप कमेंट करके ये जरूर बताइए क्या आपका रिएक्शन उफ से वाव में चेंज हुआ मेरी इस शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ. फाइन. चलिए, आपका टारगेट क्या है इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में? योर टारगेट इज टू असाइन द जॉब्स टू द पर्सन. फाइन. इस तरह से असाइन करनी है आपको जॉब कि ईच जॉब, हर जॉब जो है वो एक पर्सन के पास चली जाए. फाइन. सो इट मींस अगर इफ देयर आर द n number of the jobs, n number of the persons, how many way you can assign the job to the person? There are the n factorial possible ways. Fine. Now, the second thing is whenever you are talking about the assignment problem, your matrix, fine, whatever the matrix is there, it must be of minimization form. अगर ये मैक्सिमाइजेशन की होगी, fine. If this matrix is the maximization, you can firstly convert to the minimization. And how you can convert them? Either you can add the negative sign to the each entries, fine, or pick the largest element from this Cij, pick the largest element and subtract from the each entries. इन सभी में से एक सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को पिक करिए. फाइन. पिक द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द Cij और सभी में से Cij में से माइनस कर दीजिए. फाइन. सो योर टारगेट इज टू फर्स्टली कन्वर्ट द मैट्रिक्स टू बी द मिनिमाइजेशंस and it must be of the square matrix. Fine. Then you can write the LPP is minimizing the cost Cij Xij, where Xij is known as the allocation. Fine. Such that the Xij is either 1 or 0 and sum of 1. Can you write the dual of the problem? The dual will be my maximizations.
fine. If I use the constants or dual variable is ui and vj, so I call as a ui plus vj subjected to the constants ui plus vj minus cij is less than equal to 0, and because the constants are equality sign, so ui and vj are unrestricted sign. फाइन. और इसको देखकर कुछ याद आया आपको? यस, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. फाइन. और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की सारी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको इस लेक्चर में डिफाइन कर दी है पहले. फाइन. सो दैट मीन्स यू कैन सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स मेथड. और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की शॉर्टकट ट्रिक्स मेरे लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगी. फाइन. नाउ another thing is, if the matrix is not the square matrix, you can see this is not the square matrix, that problem is called as the unbalanced problem. Then your target is firstly convert into the balanced transportation problem by adding the dummy column or the dummy row, because in this case the number of the columns are less, we can add the dummy row, dummy column, so that it becomes the balanced problem. Now if I ask you how you can solve this problem, how you can solve this problem, that is assignment problem, how you can solve this assignment problem. अभी का लेक्चर देखने से पहले आप कैसे सॉल्व करते थे आप इसे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको 15 सेकंड की शॉर्टकट ट्रिक्स. जनरली स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं और आप में से कैसे सॉल्व करते हो. आप सबसे पहले हर रो का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक करते हो. फाइन. जैसे इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो में से माइनस कर दिया आपने 0 8 7 5. सेकंड में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक करा 4, देन इट्स 11 0 10 4. थर्ड में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 11, देन यू कैन से 2 3 5 0, एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट वन इट्स 0 इट्स 11 इट्स 9 इट्स 5. ऐसे ही करते हो आप. उसके बाद यू कैन पिक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द ईच कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट देम. फाइन. ऐसे ही करते हो आप. उसके बाद इसको असाइन करते हो आप. फाइन. एंड यू कैन सी दैट ईच रो इज नॉट असाइन द प्रॉपर जीरोस, तो आप ये टिक करते हो आप इस तरह से. फाइन. इस तरह से टिक करते हो आप. फाइन. उसके बाद आप इसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को असाइन करते हो. हाउ मेनी टाइम्स यू नीडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशंस? एटलीस्ट 5 मिनट्स. एटलीस्ट कह रहा हूं बच्चे, 5 मिनट से ज्यादा भी लगेगा आपको सॉल्व करने में भी. क्लियर? क्योंकि पहली बार तो ऑप्टिमल कभी मिलेगा नहीं ना वो. क्लियर? तो आपको हंगेरियन मेथड तो लगाना ही पड़ेगा. दिस मेथड इज नोन एज हंगेरियन मेथड. फाइन. बट क्या आपके पास इतना समय होता है एग्जामिनेशन में? आपको बाकी क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं. फाइन. वहां पे मैं ही काम आऊंगा और वहां पे मैं आपको 15 सेकंड की ट्रिक्स बता रहा हूं. बच्चों, अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, डोंट फियर अबाउट द मैथमेटिक्स. फॉलो मी, फॉलो माय एडवाइस, फॉलो माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फाइन. आपको 15 सेकंड से ज्यादा समय लगने नहीं दूंगा किसी भी एग्जामिनेशन में, और पहली अटेम्प्ट में ही आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराऊंगा. दैट इज माय गारंटी. फाइन. चलिए, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 15 सेकंड टाइम पीरियड्स. फाइन. क्लियर? तो क्या वो शॉर्टकट ट्रिक्स है? सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक्स, अगर मैं आपको इसका एक लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड प्रोवाइड कर दूं, इस अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. फाइन. इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? आप अपने ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ आई से इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, से योर आंसर इज लाइज बिटवीन 11 to 14. फाइन. तो क्या होगा इसका? तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, 17 कैंसिल हो गया, तो आंसर मिल गया ना आपको 12. कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको. सिमिलरली इस केस में भी अगर मेरा आंसर मान लीजिए 13 इज लेस देन z इज लेस देन 40 है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शंस आपके कैंसिल हो गए. फाइन. तो आप 15 सेकंड तभी तो लगेंगे. हंगेरियन मेथड कभी भी अप्लाई नहीं करना बच्चों आपको. नेवर अप्लाई द हंगेरियन मेथड. नेवर यूज द रो सम, कॉलम सम एंड सो ऑन. फाइन. अप्लाई माय शॉर्टकट ट्रिक्स. अब ध्यान से सुनिए, लिखिए मत पहले आप. फाइन. लिखिए मत, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, लिखिए मत. व्हाट इज अपर बाउंड? इज अपर बाउंड इज द मिनिमम ऑफ द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज. पहले आप समझ लीजिए. मैं इस वीडियो में मैं आपको 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी. फाइन. और सेम शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ.
फाइन। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डायगोनल एंट्रीज क्या क्या आपकी 2 4 16 9। द सम, पहले इसका सम करो 2 + 4 + 16 + 9 दैट इज माई 31। फाइन। और भी कोई डायगोनल एंट्रीज है? अदर डायगोनल एंट्रीज आर माई, दिस आर ऑल्सो डायगोनल एंट्रीज। दो ही तो डायगोनल बनेंगे ना आपके किसी भी मैट्रिक्स में। फाइन, इसका सम कर लीजिए 4 + 14 + 14 + 7, तो दैट विल बी द 28 and 11 दैट इज माई 30। विच वन इज द मिनिमम? 31। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का मिनिमम विल बी माई 30 लेस देन इक्वल टू 31। समझ में आ गया यहां तक? तो फाइंड सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज and what is the lower bound? That is the sum of the minimum of the each row, minimum of the each row। फाइन। अब पहली रो का मिनिमम क्या है आपका? आई कैन राइट हियर इज मिनिमम। आप मिनिमम को सर्कल कर लीजिए 2, सेकंड इज द 4, थर्ड इज द 11 and 4। what is the minimum among them? Oh, sorry, what is the sum of them? Minimum 2 + 4 + 11 + 4, so that will be the 6 + 15 that is my 21। so lower bound is my 21। क्लियर? समझ में आ गया? फाइन। जैसे मैं मान लो इसी एग्जांपल के लिए आपको करके दिखा रहा हूं भी। फाइन, इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करना है आपको। फाइन, so can you find the lower bound? लोअर बाउंड सबसे मिनिमम क्या है इसका? 2, नेक्स्ट वन इज अगेन 2, नेक्स्ट वन इज अगेन 2, नेक्स्ट वन इज अ 5। so 5 + 2 7, 7 2 9, 9 and 2 11। फाइन। एंड मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? यू कैन फाइंड द डायगोनल सम। फाइन, सो इट विल 10 20 and 21। और कॉलम वाइज दूसरी वजह से डायगोनल कर लेते हैं 5 2 2 5 दैट इज द 14। विच वन इज द मिनिमम? 14। तो आप ऑप्शंस में देखिए, मिल गया आपको आंसर। हाउ मेनी सेकेंड यू नीडेड? हाउ मेनी सेकेंड? यस 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको भी। क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन पे वापस दोबारा आऊंगा, इसको ऊपर से पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है, बट मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दी पहले। आप क्लियर यहां तक समझ में? सेकंड शॉर्टकट ट्रिक्स, ये तो मैं एक से क्या काम चलता है, अरे एक से क्या मजा आता है, अरे 3 4 बताऊंगा आपको, घबरा क्यों रहे हो? फाइन, चलिए सेकंड शॉर्टकट ट्रिक्स। Second shortcut tricks, you can solve this assignment problem by using the least cost method। फाइन, लीस्ट कॉस्ट मेथड कहां से आया आपके पास? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। फाइन, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन मेथड। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमलिटी के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? ui + vj - cij it will be less than equal to 0 or not। क्लियर? समझ गए? नाउ फाइन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपने क्या देखा था? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वेरिएबल्स? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द वेरिएबल्स? m into n, m is the number of the rows, n is the number of the columns। how many bfs you have? m plus n minus 1। how many non-basic feasible solutions? which is m minus 1, n minus 1। fine, now look at the transportation problem। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है? m and n both are same। fine, so total number of the variables are m into n, that is a n square। fine, how many basic variables you have? Basic feasible solutions, if m is equal to n, that is a 2m minus 1। basic means that is a rank। fine, this if I consider this is my matrix, then the rank of the matrix is m plus n minus 1। fine, now how many non-basic feasible solutions? It is m minus 1 square। what is the non-basic feasible solution? that means the dimension of the nullity। fine, okay, solution कितने होते थे इसमें? which is less than or equal to
m plus n minus 1. In this case also the solution will be less than or equal to 2m minus 1. Fine. That is a degenerate and non-degenerate. Degenerate को आप क्या देते हो आप? That is a zero level solution. Fine. And how you can find the zero level solution? Total number of the variables are n square. Fine. And basic feasible solution कितने हैं? 2m minus 1 और 2n minus 1. इसमें से कितनी एलोकेशंस आएंगी इसके अंदर? मैक्सिमम m. तो m minus 1 are the degenerate solutions. चलिए अब स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड द बाउंड. फाइंड व्हाट इज द मिनिमम एलिमेंट इज. ओके, एक और शॉर्टकट ट्रिक्स रह गई. क्लियर? ये यहां तक क्लियर हो गया. फाइन. अच्छा, एक ट्रिक्स और रह गई. फाइन. एक ट्रिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह ही गया आपके पास. आपने लोअर एंड अपर बाउंड निकाल दिया था इसका. फाइन. क्लियर? इसमें लोअर एलिमेंट्स 2 था, 4 है, 11 है और 4 है. ओके, नाउ यू कैन से z इज इक्वल टू LB इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉट. और इसको भी इस तरह से समझते हैं. इसका कितना है? लोअर बाउंड कितना आ रहा है? 6, 10, 21. यही तो आएगा ना. फाइन. कैन यू से, बिकॉज लोअर, कैन यू से 21 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन? कैसे करोगे? सॉल्व करना पड़ेगा हंगेरियन मेथड से? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा. जो आपके मिनिमम वैल्यू है, चेक करिए क्या हर कॉलम में एक एक सर्कल असाइन हुआ. देखिए थर्ड कॉलम में तो असाइन ही ना हुआ. इसका मतलब z इज इक्वल टू 21 इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. और दूसरे शब्दों में क्या कह दो आप कि देखिए इस कॉलम में 2 मिल गए ना आपको सर्कल, तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा. क्लियर? चलिए अब इसमें करते हैं. अभी सबसे पहले लोअर बाउंड निकालते हैं. मिनिमम निकालो हर रो का. 8, 9, 8 कितना हो गया? 9 and 9 इज तो 26, 18 प्लस 8. फाइन. और अपर बाउंड कैसे निकालोगे? डायगोनल का सम और इसका मिनिमम ले लेना बाद में आपको. सो 10 प्लस 15 प्लस 9 इज 34. फाइन. और इधर से 30 and 38 मिनिमम इज 34. Can you say 26 is the optimal solution? क्या होगा ये? 26 कैसे बना था आपका? मिनिमम लिए थे ना आपने. तो यहां देखो सेकंड कॉलम में तो आपको कोई मिला ही नहीं. इसका मतलब 26 इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ 26. क्लियर? अगर ऑप्शंस दिए होते कुछ तो आप डिस्कार्ड कर देते. फाइन. चलिए अब आपको कैसे निकालना है? ये मेथड से तो नहीं हुआ, इसको करेंगे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से. फाइन. सबसे पहले असाइन कर देते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट के ऊपर वैल्यू. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 8. इसके ऊपर असाइनमेंट दे दो 1. तो जैसे इस हर रो में एक ही एलिमेंट जाएगा. नेक्स्ट वन इज, ये 2 बच गए. फाइन. अब तो डायगोनली बच गया ना. जब भी आपके पास 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट्स बच जाए आपके पास, देन लुक एट द डायगोनल्स. डायगोनल का सम कितना है? 19. और इधर से कितना है? 30. तो ये मिनिमम मिलेगा ना आपको. तो मिनिमम एलिमेंट इज 1 और इधर से 1. क्लियर? अब आप देखो m प्लस n माइनस 1 कितना है इसका. इसकी कॉस्ट कितनी आपकी? 8 है. इसकी कॉस्ट आपकी 9 है. इसकी कॉस्ट आपकी 10 है. क्लियर? अब इसका सम देख लो कितना है. इस 27. फाइन. तो 26 तो इसका कॉस्ट है ही नहीं मिनिमम. ओके, और डेसिमल में आ नहीं सकता इसका आंसर. इसका मतलब मिनिमम आंसर 27 ही तो मिलेगा. फाइन. बिकॉज 26 से ऊपर ही है ना आपका आंसर. सो 26 से ऊपर फ्रैक्शन में मिलेगा नहीं क्योंकि ऑप्शंस आपके फ्रैक्शन में है नहीं. फाइन. बट आपको चेक कैसे करना है एग्जैक्टली. अब आपके m प्लस n माइनस 1 निकालो कितने आएंगे. 3 प्लस 3 माइनस 1, 5 एलोकेशंस होंगे. लेकिन यहाँ तो 3 एलोकेशन मिली, तो 2 एलोकेशन अपनी तरफ से 0 असाइन कर दो. कहीं भी असाइन कर दो, बस बॉक्स नहीं बनना चाहिए. सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट मैं यहाँ असाइन कर देता हूँ 0. फाइन. अब मैं यहां नहीं असाइन कर सकता, नहीं तो ये बॉक्स बन जाएगा ना प्रॉपर. एक एलिमेंट और कहीं असाइन कर देते हैं. यहां कर सकता हूं बॉक्स. यस, यहां कर सकता हूं मैं. फाइन. यहां कर सकता हूं मैं. यस, यहां भी कर सकता हूं. तो यहां कर देते हैं असाइन. फाइन. तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी?
दैट नंबर इज माई 10 और ये नंबर आपका है 9। अब एलोकेशन दे देते हैं, आप इसको 0 साइन कर दो, दैट नंबर इज माई 10 8। इस 8 के हिसाब से यहाँ 9 है तो 1 होना चाहिए, इस 10 के लिए आपका कितना होना चाहिए -1, और इस 1 के लिए आपका ये 9 होना चाहिए, इज ए 9। फाइन, अब आप चेक कर लो क्या ये ऑप्टिमल है कि नहीं। तो 0 + 9 - 12 इज a नेगेटिव नंबर, 1 + 10 + 15 is a negative number, -1 + 9 - 15 is a negative number, सारे नेगेटिव आने चाहिए ना आपके, एंड 8 - 1 - 10 all are the negative number. Yes, this is my optimal solution. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे फाइनल आंसर, इधर यहां पे 1 लिखा हुआ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज एज आई डिफाइन यू इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, इसका सम कर दो एंड इसका सम कर दो। Fine, so that will be 27 is the right answer of the problem. Fine, clear? चलिए अगला देखते हैं। The following is the assignment problem. The minimum cost by consult job J4 is assigned to the person P2. ये तो इसको असाइन कर ही दी है पहले, तो बाकी जो मैट्रिक्स रह गई, फाइन, दैट इज माई 3x3। फाइन, इसके ऊपर हम अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स लगा लेते हैं। सो P2 एंड J4 विल बी कैंसल, 5 8 6 6 7 6 6 9 8। इसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड निकाल लेते हैं। व्हाट इज द लोअर बाउंड, मिनिमम एलिमेंट इज माई 5, सेकंड में 6 एंड थर्ड इज ऑल्सो 6। आप ये भी ले सकते हो, देयर इज नो इश्यू। तो कितना हो गया 11 17, और अपर बाउंड डायगोनल का सम करिए, 12 + 8 20, और दूसरी तरफ से 18 19, so 17 and 19 will be there. Can you say 17 is the minimum answer? No, because हर कॉलम में आपको एक वैल्यूज नहीं मिली, कॉलम वाइज देखना आपको। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 17 होगा और लेस देन इक्वल टू 19 होगा। फाइन, क्योंकि ये डेसिमल में तो है नहीं आंसर इसका। फाइन, इसका मतलब ये 17 से ऊपर की स्टार्टिंग कहां से होगी, 18 से, मिनिमम 18 विल बी देयर। नाउ आई कैन असाइन द लीस्ट कॉस्ट मेथड, यहां असाइन कर देते हैं एक 1। फाइन, तो पहली रो पहला कॉलम कैंसिल हो गया, ये 2 एलिमेंट्स बच गए। फाइन, यहां से कितना बना 15, यहां से भी 15 बन रहा है डायगोनल से, तो कहीं भी असाइन कर दो आप। फाइन, फाइन, नाउ कैन यू से इसका कितना बन रहा है सम, 5 + 9 + 6 कितना हो गया 11, 11 + 9 इज 11 + 9 इज 20, सॉरी, लेकिन 20 तो पॉसिबल ही नहीं है, 20 इज द आउटसाइड, इसका मतलब दिस इज नॉट द मिनिमम कॉस्ट। फाइन, तब आप क्या करेंगे, इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं इसका। फाइन, तो m + n - 1 कितना हुआ 5, तो 2 वैल्यू साइन कर देते हैं कहीं पे भी, एक वैल्यू यहां साइन कर लेते हैं 0, ठीक है, यहां नहीं कर पाएंगे कि कर लेंगे, हम कर सकते हैं यहाँ पे ना, बॉक्स नहीं बन रहा आपका भी, तो वी कैन असाइन दैम, तो यहां 0 ले लो। फाइन, दिस नंबर इज 5 6 6, 6 के लिए 9 चाहिए तो इससे 3, इस 6 के लिए आपको 6 चाहिए, दैट विल बी 0। फाइन, नाउ तो एलिमेंट निकालिए, 5 + 3 8 0, 5 - 6 is a negative, 8 9 9 - 7, 9 - 7 is a 2, that's a positive number. Fine, and 6 - 2 is a negative number. तो इसकी पूरी पहले की कॉस्ट कितनी है 20, आप यहां से ui और vj से भी प्लस कर सकते हो। 20 क्या बताया था मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, कितना साइन हो रहा है ये 2, so that will be 18, so 18 is the minimum cost. फाइन, तो 18 ही क्यों मिनिमम कॉस्ट हुई, यू कैन सी, ठीक है, इसको मैं बना के दे रहा हूं आपके लिए, हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया 18 इज द मिनिमम कॉस्ट। फाइन, यहां पे आपको एलोकेशन दे दी 1, लिविंग वेरिएबल क्या होगा, इन बॉक्स कौन सा बनेगा आपका, यहां से स्टार्ट करोगे और एलोकेशन वाइज मूव करोगे ना, यहां से दिस दिस एंड दिस, तो ये 1 आपका बाहर निकल गया। फाइन, तो एक 1, दिस 1 यहां नहीं हो सकता है बिकॉज एलोकेशन खत्म हो गई है आपकी, तो दैट विल बी 1। फाइन, तो तीसरा एलिमेंट आपके पास यहां पे चला जाए। फाइन,
क्लियर। और इसकी भी जरूरत नहीं, यहां नहीं जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से द इनिशियल कॉस्ट इज 20 माइनस एलोकेशन मैक्सिमम वैल्यू 2, so that is a 18 और प्लस 8 था, 18 plus 8 26 is the right answer of the problem. Okay, consider the assignment problems. Here the time is there. Job 3 is assigned to the worker A. Job 4 is assigned to the worker B. Job 2 is assigned to the worker C. Job 1 is assigned to the worker D. And then the time taken by the different worker is now changed. Fine. तो दो मेथड आपको बताऊंगा. फर्स्ट मेथड इज अगेन आपका टारगेट क्या है, इसकी कॉस्ट निकालना. फाइन. तो आपने फिर से उसी तरह से लोअर एंड अपर बाउंड निकालो. मिनिमम वैल्यू विल बी 2, सेकंड इज आल्सो 2, थर्ड इज आल्सो 2, फिफ्थ वन इज 5. so that will be 2 plus 2 plus 2 6, 6 and 5 is 11. upper bound will be, take the diagonal sum, 10 20 21 and 5 and 5 10 and 10 is 14, so that is a 14. so based on these upper and lower bound you can easily discard the 17, you can easily discard the 15, you can easily discard the 10. Can you say 11 is the optimal cost? Can you say no, because second column में आपको वैल्यू ही नहीं मिली ना कोई भी, तो 11 is not the optimal cost. तो एक ही ऑप्शन बचता है उसके बाद, 12 is the right answer of the problem. Second method क्या है, because we already know the optimal assignment cost and if you change Cij to the Cij plus minus of the alpha, fine, किसी भी कोर्स में कुछ भी प्लस माइनस करिए, fine, then what you will be obtained, optimal solution remain unchanged, optimal solution remain the change but optimal value change. फाइन. तो आपने इसमें क्या करा, आप देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और सिर्फ आपने टाइम पीरियड को चेंज करा, दैट मींस Cij आर चेंजिंग, दैट मींस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस एलोकेशंस. तो दीस आर द सेम. अगर ये सेम है, द सेम एलोकेशन विल बी असाइंड टू दिस प्रॉब्लम, और इसका जेड चेंज हो सकता है. तो इसमें क्या कहां एलोकेशन हुई है, फाइन, क्लियर. इसका सम कर लेते हैं आप, 5 plus 2 plus 2 plus 3, तो 4 7 and 12 is the right answer of the problem. Fine. Whenever you have to add something or you want to subtract something from the given assignment problem or given transportation problem, optimal solution remain always same but the optimal value changes. It may increase or it may decrease depending upon the value of the alpha. चलिए, यूज द हंगेरियन मेथड. कहा हंगेरियन मेथड है बट हम अप्लाई कभी नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मेरे को फॉलो करा हुआ है. अगर मेरे को फॉलो करा है तो शॉर्टकट से सॉल्व करो ना. फाइन. तो करते हैं, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड निकालो इसका. सबसे पहले लोअर एलिमेंट 5, 1, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 12, लोअर एलिमेंट इज 7. फाइन. तो कितना हो गया ये, 5 plus 1 plus 12 plus 7, so कितना हो गया, 19 20 25. then upper bound, minimum of the diagonal sum 30 40 45 52, कॉमा कॉलम इस तरह से डायगोनल ले लो, 32 33 33 and 8 41, that is my 41. so 44 is the answer, cancel. 52 is my cancel. Fine. Can you say 25 is optimal? Can you say 25 is optimal? No, because second column में आपको कोई वैल्यू मिली ही नहीं है. कॉलम वाइज देखना बच्चों, बार बार कह रहा हूं भी. इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 26 से स्टार्ट होगा. फाइन. ये रेंज बनेगी ना 25, को सारी एंट्रीज पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो 20, अगर यहाँ डेसिमल में होता कोई वैल्यू, मान लो 25.5, तो पॉसिबल था कि वो आंसर पॉइंट्स में शुरू हो जाता. क्लियर. नाउ अब आपको क्या करना है, 25 आंसर है 26 एंड 29.
फाइन, ये दो ऑप्शन तो कट गए। फाइन, अब 26 और 29 में से एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। आप तो असाइन करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1। फाइन, तो कैंसिल हो गया। स्मॉलेस्ट सेकंड वैल्यू आपकी क्या है 5, यहाँ लोकेशन दे देते हैं। फाइन, तो बाकी क्या बच गया आपका, ये 4 एलिमेंट्स बच गए। फाइन, बिकॉज फाइन इसमें 4 में डायगोनल देख लेते हैं कितना 23 है, और ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब एक वैल्यू यहाँ पे साइन कर देते हैं और एक यहाँ पे साइन कर देते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? इज इट फाइन? अब आप देखो हर कॉलम में एक एक वैल्यू साइन होगी। फाइन, सो द ऑप्टिमल वैल्यू विल बी 5 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 7, so that will be 21, 22 and 29। अब ये ऑप्टिमल है कि नहीं है वो कैसे पता लगेगा, यूवी मेथड लगा दो। फाइन, तो इसकी एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, 4 प्लस 4 m प्लस n माइनस 1, तो 7। ये तो 4 वैल्यूज मिली, 3 वैल्यूज अपनी तरफ से कहीं और लगा दो, आप कहीं भी लगा दो, चॉइस आपकी है। मान लो मैंने यहाँ लगा दी 0। फाइन, और यहाँ लगा सकता हूँ, यस यहाँ भी लगा सकता हूँ। फाइन, और एक यहाँ लगा दो, नहीं यहाँ नहीं लगा सकता ना, नहीं तो बॉक्स बन जाएगा। फाइन, 11 पे लगा सकता हूँ, यस 11 पे, यहाँ से यहाँ गए नहीं, 11 पे नहीं लगा सकता। फाइन, 11 से आप इसके बाद 23 पे लगा सकता हूँ, यस 23 पे लगा सकता हूँ। फाइन, और 14 पे भी नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे कितनी होगी 7 वैल्यूज, 3 4 5 6 7। अब एलोकेशन दे देते हैं, इसकी वैल्यू 0 दे देते हैं, दैट इज माई 5 10 16। फाइन, 16 के लिए 27 चाहिए, 23 चाहिए, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 के हिसाब से ये 9 हो गया। फाइन, इस 1 को चाहिए, जहाँ पे 10 है तो यहाँ पे -9, 16 है और ये 7 है, तो दैट विल बी माई -9। फाइन, नाउ यू कैन सी वेदर द एलोकेशंस आर नेगेटिव और नॉट। ये नेगेटिव हो गया ना, 5 + 7 -23, 5 - 9 नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, 17 - 25 negative, again negative, 9 - 35 negative, again negative, 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 all are negative, so yes 29 is my optimal cost, so C A is the right answer, C is the cancel. The unit cost in the plans, so मैं पहले बाउंड निकाल दे रहा हूं आपको। फाइन, लोअर बाउंड कहां पे है, फाइन 7 5, so 9 और 5 14, 14 plus 12 is my 26। अपर बाउंड कैसे निकालोगे, तो यहीं से क्लियर हो गया, 26 से बड़ा होना चाहिए आपके पास, so 20 कैंसल, 22 कैंसल, 25 कैंसल, 28 इज द राइट आंसर। बट चेक कर लेते हैं अपर बाउंड क्या आएगा, डायगोनल का सम 4 9 5, 14 plus 14 28, और upper bound is 9 and 9 is 18, 18 and 16 34, the minimum is 28। can you say that 26 is the right answer? 26 के लिए ये बने थे ना आपके मिनिमम, क्लियरली से द कॉलम 1 में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आया, so 26 is not the optimal, so इसका मतलब all the entries are my positive, so या तो 27 होगा या 28 होगा, बट ऑप्शन में से 28 ही रह गया आपका, so D is the right answer। Fine, otherwise how you can do that, I can assign the minimum cost, ये 1 हो गया आपका। फाइन, ये दोनों कट गए, इनमें 4 एलिमेंट्स बच गए ना, ये इसका डायगोनल देख लो किसका मिनिमम है, ये 23 है और ये आपका बड़ा है, तो इसका मतलब 1 and 1, तो 14 plus 9 plus 5, तो you can see 28 is the right answer of the problem। Okay, the cost matrix of this problem, so again we can start with this। so पहले डायगोनल वाला देख लेते हैं, इस 2a plus 2c and second is 4 of d, इसका मिनिमम। ओके, और अदरवाइज अच्छा ए बी सी हमें पता नहीं मिनिमम मैक्सिमम क्या है, फिर क्या होगा, वेरी सिंपल, अज्यूम दैट, अच्छा सबकी वैल्यू ग्रेड, सबकी वैल्यू 1 ले लो आप, ए बी सी डी एंड 1 ऑल आर 1 1, तो ये मैट्रिक्स का सबसे मिनिमम कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज 1 1 1 होगी ना, तो डायगोनल का सम कितना हो जाएगा, डायगोनल का सम इज 4 दोनों तरफ से, और मिनिमम एलिमेंट सभी में 1 1 1 मिलेगा, तो इसका सम भी 4।
यही आया आपका आंसर। इसका मतलब ऑप्टिमल आंसर कितना हो गया? 4। So look at the options. Maximum of the 1 आएगा but it is not 4. Minimum 1 आएगा, that is not 4. 4 of minimum 1 is 4. Again this is 4. फाइन। तो ए और डी ऑप्शन रह गए आपके भी। फाइन। अब क्या करें? अब हम डी को कोई भी एक आंसर ले लेते हैं, लेट्स से 0, डी को 1 ले लेते हैं। फाइन। ए बी सी, इसको कुछ भी आप ले लो, से 100 ले लो आप, पैसा आपकी है। फाइन। तो अब आप बाउंड देखो कितना आ रहा है। नहीं, तब तब आपको देखना मिनिमम ना, आपको तो मिनिमम तो 4 मिल ही गया ना आपको, 4 से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो ये कितना हो गया आपका? a plus b plus c plus d, that is not equal to 4, and this is still 4. Fine. So d is the right answer of the problem. Otherwise, अगर आप यहां से फिर से बाउंड निकालना चाह रहे हो, then you can again do what is the bound? a plus c plus, that's a 2a plus 2c, that is my 400, and 4 of d is my 4, minimum is 4. Fine. Which is less than of each रो का मिनिमम लेना आपको। तो इसका मिनिमम d आएगा बिकॉज d is my 1, इसका भी मिनिमम d आएगा, d and d सबका सम 4, अगेन द 4 is the right. फाइन। और मेथड चाहिए? अरे लो यार, और मेथड लो, सेकंड मेथड। If you look about the given statement very carefully, the matrix A is my A transpose. Fine. And all those elements are my positive. Is it okay? Yes, it is given. So then the assignment problem will give the minimum is 4 times A, B, C, D. तो आप इसको डायरेक्टली रिजल्ट से भी ले सकते हो. दिस इज माई शॉर्टकट ट्रिक्स. अदरवाइज as I tell you, you can find the bounds of the problem. चलिए, in the assignment problem with the M job and the M machines, number of the basic variables at the 0 level. What is the meaning of the 0 level? That means D generate solutions. फाइन. तो वो कैसे निकालेंगे? पहले BFS देख लो कितने होंगे टोटल BFS. M plus N minus 1 होंगे ना. तो M and N both are same. 2M minus 1. फाइन. ऐसा ही तो होगा ना. अब हर रो में कितनी एलोकेशन आप दे सकते हो? आप हर रो में एक एक एलोकेशन दे सकते हो. तो कितनी टोटल एलोकेशन आपने असाइन कर दी? टोटल असाइनमेंट्स आर M. So what are the remaining? Remaining values are my zeros. So that is a 2M minus 1 minus of the M. M minus 1 are the right answer of the problem. जीरो एलोकेशन मतलब वही है बच्चों जो मैंने यहां पे आपको क्या बताया. ये जीरो लगाए ना मैंने आपको. जीरो क्यों लगाए? सो दैट M प्लस, जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करनी है तो आपको एलोकेशन कितनी होनी चाहिए? एलोकेशन मस्ट बी M प्लस एन माइनस 1. और अगर M प्लस एन माइनस 1 से कम है तो वी विल कॉल एज दी डीजनरेट BFS. और कितने कम है? दैट इज कॉल्ड एज द जीरो लेवल BFS. फाइन. ये शॉर्टकट ट्रिक्स असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हो आप. Okay, look at the next one. If some constant is added to the each assignment problem, if some constant alpha is added to the each cost of the assignment problem, then as I mentioned you, the optimal solution means allocation Xij remain unchanged. Fine. The optimal solution remain unchanged, but the optimal value is change, and that change it may be increase or decrease depending upon the value of the alpha, whether it's a positive or negative. The optimal solution changes? No. Optimal solution remain the same. Optimal solution depending upon the constant added? Not. That is dependent upon the optimal value. Optimal solution depends upon the cost of the assignment problem. Not. Optimal value depends upon the cost of the assignment problem. Right answer is B is the correct answer. In the balanced assignment problem with the M number of the persons and the number of the jobs, there the M, there are the N. First of all, when you can say this number is my balanced. Balance means
number of the rows and the number of the columns must be same, and the number of the dual variables. प्राइमल और ड्यूल में क्या रिलेशन बताया था मैंने आपको, इसके वेरिएबल्स, ड्यूल के वेरिएबल और प्राइमल के क्या होते हैं, वो कांस्टेंट्स. सो हाउ मेनी कांस्टेंट्स, अगर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम के नहीं पता तो लुक एट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. हाउ मेनी कांस्टेंट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन द प्राइमल, m plus n. Fine. In this case m and n are same, so number of the constraints in the primal problem is my 2m, which is same as the number of the dual variables. Fine. So 2m is the right answer because m is equal to n, either the 2m or 2n is the right answer. So a, b, both a and b are the most appropriate answers. Fine. So c, because a और b both है तो a और अकेला इसको नहीं ना टिक कर सकते आप. फाइन. अगर आपने तीनों को टिक कर दिया इसका मतलब क्या है, 2m 2n बोथ, तो बोथ वाला चीज तो आप इन दोनों को कवर कर दे रहा है आपको. तो c इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. बच्चे मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए आप. असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कहीं नहीं मार खाओगे आप, पहली बार में ही आप क्वालिफाई कर जाओगे आप. फाइन. Consider the linear programming problem with the m number of the m's number of the jobs. A is the coefficient matrix. Okay, they are talking about the rank. Fine. तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया आपको, रैंक किसको बोलते हैं आपके पास, बीएफएस को. फाइन. तो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का बीएफएस कितना होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बीएफएस क्या होता है, m plus n minus 1, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में बीएफएस कितना हो जाएगा, m and n are same, so that will be 2n minus 1 is the rank of the matrix. Fine. C or D option cancel हो गए. Now the every feasible solution. Solution means xij. xij की वैल्यू क्या होगी, either 1 or 0. That means they are my integers. Fine. But he said non-integer value. B option is also cancel. A is the right answer of the problem. बच्चों उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे आप. फाइन. अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, फाइन, देन यू विल लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एज वेल. Let Cij is the cost of the ith cell of the assignment problem. If the new matrix is generated by Cij is half Cij plus 1. फाइन. ओके, क्या हुआ, आपने कुछ ऐड कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या बताया आपको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम रहेगा. फाइन. एंड ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी, एंड दैट चेंज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज. फाइन. सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट प्लान. प्लान मींस सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज. फाइन. ऑप्टिमल प्लान चेंजेस. ऑप्टिमल प्लान मींस solution xij cancel. Optimal plan unchanged. Optimal plan increases or changes. B और D ऑप्शन तो कैंसिल हो. फाइन. अब A ऑप्शन में क्या रहा है, डिक्रीज, और यहां इंक्रीज. फाइन. नो वेदर से इंक्रीज और डिक्रीज दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हियर. मान लीजिए आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम का कॉस्ट जो थी वो अल्फा थी. फाइन. तो न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अल्फा बाई 2 प्लस 1, ये तो आएगी. फाइन. अब आप देखिए अल्फा की वैल्यू कोई भी ले लो आप, अल्फा लेट्स से 10, तो ये न्यू कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 10 बाई 2 प्लस 1 विच इज लेस देन ऑफ, बिकॉज आपका जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास दैट इज अ लेस देन ऑफ द 1, तो आपकी कॉस्ट क्या हुई आपकी, दैट इज ऑलवेज अ डिक्रीज. और यू कैन से अल्फा बाई 2 प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन ऑफ द अल्फा. फाइन. बिकॉज हर कॉस्ट जो आपकी, ये अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, इस मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ द 2, कॉस्ट की हर वैल्यू आपकी 2 से बड़ी है आपकी. फाइन. तो इसका मतलब कॉस्ट जो इंक्रीज तो कभी नहीं करेगी. ओके, so that means the cost is only decreases is the right answer. चलिए, let S convex set is a 9 dimension is the solution set I call as the S collection of all those elements of the Xij such that
this equation will be satisfied. The number of the extreme points. Fine. तो आपको s की नंबर पूछा है. नंबर मीन्स your target is to find the dimension of the s. तो dimension means your target is to find the nullity of the s. Fine. और because सबकी वैल्यू क्या क्या आपके पास है 1. So this problem is related to the assignment problem. और assignment problem में nullity किसको कहते हैं हम? That is called as a non-basic feasible solutions. Fine. तो non-basic feasible solution कितने होते हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में? m-1 n-1. तो यहाँ पे m and n are same, it is n-1 square. तो कितने n है आपके पास? 3 dimension की प्रॉब्लम है ना, so 3 minus 1 whole square, which is my 4 is the right answer of the problem. क्लियर? और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे रैंक पूछ लिया जाए, रैंक मीन्स नंबर ऑफ द BFS. तो BFS कितने होते हैं आपके पास? 2n minus 1. So that will be 6 minus 1. 5 is the rank of the matrix. चलिए look at this one. ये सेम क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने स्टार्टिंग में करा था आपके लिए. फाइन. You can find the bounds. You can find the bounds. सबसे पहले देख लेते हैं 2 is the minimum. Again 2 is the minimum. 2 is the minimum. 5 is the minimum. 11. Second is you can find the diagonal sum. Fine. So that's a 10, 20, 21 and 5, 10 and 14. That is my 14. तो clearly से ये options आपके cancel होंगे. Fine. लेकिन मान लो अगर आपके पास एक option यहाँ पे 13 भी होता, फिर आप क्या करते? आप least cost method apply करते. Fine. मैं एक और method आपको दे रहा हूं अगर आप least cost method भी apply नहीं करना चाहते. Fine. क्या करिए? सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को असाइन कर दो आप. फाइन. तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4. इसका मतलब मैंने ए को 3 असाइन कर दिया. फाइन. और कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट था इसके अंदर? ये भी तो था ना 2. इसका क्या नाम हो गया? B3. और जब आप लीस्ट कॉस्ट मेथड से स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही तो स्टार्ट करोगे ना, इन सब में से किसी एक को देना होगा, या फिर C4. क्लियर? यही पॉसिबल है. तो मैं एक एक करके ऑप्शन को सॉल्व करता हूं. सबसे पहले अगर मैंने इसको असाइन कर दिया तो दैट वैल्यू विल बी कैंसिल आउट. फाइन. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? ये दो एलिमेंट्स. इसका मतलब यू कैन असाइन ईदर टू द C2 और टू बी द C4. यही पॉसिबल है. मान लो अगर आपने इसको असाइन कर दिया दैट विल बी कैंसिल आउट. फाइन. नाउ यू हैव द 4 एलिमेंट्स. जब भी 4 एलिमेंट बन जाए डायगोनल का सम करके देख लो किसका मिनिमम है. 5 and 7 is 12. 5 and 3 is 8. इसका मतलब B जो आपका है B4 को जाएगा और इधर 5, बिकॉज 3 and 5 is the minimum instead of the 7 and 5. तो D5. तो कितना सम बन गया इसका? A5 2 था, इधर 3, 2 plus 3 is 5, 5 and 5 10, 10 and 2 is 12. फाइन. सेकेंड केस कर लेते हैं. सेकेंड केस क्या था आपका? ये कैंसिल हुआ था ना. देन A3 के बाद आपने C4 को साइन करा. फाइन. तो देन दीज टू वैल्यूज विल बी कैंसिल आउट. अगेन अब आपके ये 4 एलिमेंट्स बच गए. टेक द डायगोनल सम 14 and 14. तो आप कोई भी एक केस ले सकते हो. आई कंसीडर द केस इज B1 एंड देन D2. यू कैन फाइंड द सम. 7 plus 7 14, 14 and 2 is 16, 16 and 2 18. तो ये तो ऑप्शन नहीं मिलेगा बिकॉज 12 आपको एक सोल्यूशन मिल गया. फाइन. नाउ अगर आपको अब 12 एक मिल ही चुका है, इसका मतलब 12 से ऊपर तो जाएगा नहीं ना कभी भी. इससे कम, बिकॉज आपने पहले ही देख लिया था कि 11 से 14 के बीच में है और 11 इसका सोल्यूशन नहीं है. फाइन. तो 13 वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज 12 आपके पास है. एनी हाउ अगर मैं इसको असाइन करता हूं, फाइन, दैट विल बी कैंसिल आउट. क्लियर? तो आप मतलब मैं कह रहा हूं हंगेरियन नहीं लगाना आपको ना, शॉर्टकट ट्रिक्स दे रहा हूं. उसके बाद स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढिए कहां, इधर एज ए C2 और एज ए C4. फाइन. अगर मैं C2 को ढूंढ लेता हूं तो दिस रो एंड दिस रो विल बी कैंसिल. तो ये 4 एलिमेंट में से डायगोनल का सम सेम है. देन वी कैन असाइन A1 D4. तो कितना बन गया इसका सम? 14. ये भी नहीं होगा बिकॉज 12 आपको ऑलरेडी एक मिला हुआ है.
फाइन। देन अगर मैं C4 को असाइन करता हूं मिनिमम वैल्यू, तो C4 दिस वैल्यूज आर कैंसल आउट, तो इनमें से मिनिमम क्या है, इट्स 12, इट्स 8, सो 8 वाला मिनिमम है A2 D1, तो ये कितना हो गया आपके पास 3 8 8 and 4 12, फाइन। नाउ लुक एट द थर्ड केस C2, अगर मैं C2 को असाइन करता हूं मिनिमम वैल्यू, then the next smallest value will be either as assigned to the A3 or as the B3. अगर आप A3 को assign करते हो minimum value, then look at the 7 3 5 and 5, so is a B3 and D1, fine. So that answer will be 3 and 5 8, 8 plus 4 is 12. And similarly you can find this C2 B3, अगर आप C2 और B3 को assign करते हो, then the values are assigned to be the A1 and D4. Answer is 10 4 14. Similarly if you assign for the C4, सबसे पहले C4 को assign करते हो, then the next value is either assigned as a A3 B3, fine. If you assign as a A3, then the next values are 14 and 14, you can assign either as a B2 and D4, or similarly for this case either as a A2 and D1, you will get the answer is fine. So 14 and 18, so आप देखो हर केस में आपको 12 ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। Okay, look at this next one. An assignment problem is solved by minimizing the total processing cost of the 4 jobs 1 2 3 and 4 such that each job is processed exactly by one machine. So that's assignment problem. The minimum cost is found to be 500. Fine, ये 500 मिल गया. Due to the change in the design, the processing time of the job 4 is increased by 20. हर जॉब को मैंने इसकी कॉस्ट की वैल्यू को 20 इंक्रीज कर दिया. Fine, whatever the original values, I have increased by 20. Fine. Then the revised minimum cost. Again, you can see optimal solution remain the same. Fine. But the optimal value is changes. तो वो कितना चेंज होगा आपके पास, either increase or decrease. लेकिन आपने क्या करा है, you have added, so plus 20 in the each से, so plus 20 आपकी cost भी increase हो गई. So the right answer of the problem is 520 is the right answer of the problem. Clear? चलिए, look at the next one. Again, your target is to find the optimal cost. Okay, that will I give you the exercise for you. Fine. You can solve this. This is my question number 1. You can solve this by my shortcut tricks. Find the bounds and let me know the answer in the comment box. Again, this is the question 2 and question 3. Again, these are the exercise for you and you can solve it and let me know the answer of all these 3 questions in the comment box. I can magnifying for you. अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, okay, you can solve these problems and let me know the answer in the comment box. Fine. बच्चों, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, आप कोई भी ऑपरेशन रिसर्च की बुक उठाइए, असाइनमेंट प्रॉब्लम का चैप्टर खोलिए, कॉस्ट मैट्रिक्स को कॉपी पे लिखिए और मेरी शॉर्टकट ट्रिक से उसका आंसर निकालिए. फाइन. एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम इन अ वेरी सिंपल मैनर. क्या आप कमेंट करके बताओगे कितना मजा आया आपको, एंड will your reaction will change from oof to wow related to the assignment problem. Fine. I'm waiting for your comment box and hope you can support my video as well. Best of luck, students. We will see the next lecture very soon. Till then, you can share this video with all your friends and students. Best of luck, students. Happy learning. Thanks for the watch.